नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राज्य बाल भवन सोसाइटी बेंगलुरु, जिला पंचायत महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल भवन समिति बीदर के सहयोग से बीदर में बच्चों के लिए समर कैंप कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जब विश्व नेता अनुरोध करते हैं तो हमें उनका पालन करना होता है, युद्ध विराम पर सांसद शोभा करंदलाजे का बयान। रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक, पाकिस्तान में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया, शिवसेना नेता शाइना एनसी ने भारत में नागरिकों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह और एनएसए, सीडीएस और सेना प्रमुख भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन, दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य बाल भवन सोसाइटी बेंगलुरु, जिला पंचायत महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल भवन समिति बीदर के सहयोग से जिला बाल भवन बीदर में बच्चों के लिए जिला स्तरीय निःशुल्क समर कैंप कार्यक्रम का रविवार 11 मई को उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महेश धूपा सीआरसी राजगिरा क्लस्टर ने किया। कई वर्षों से बाल भवन समिति बच्चों के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करती आ रही है, जिसमें बच्चों में पेंटिंग, कराटे, नृत्य, संगीत, योग, शिल्प और मेहंदी की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिली है और इसके लिए 15 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने बच्चों से इसका लाभ उठाने को कहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यालय अधीक्षक श्री सुभाष रत्ना ने की। इस अवसर पर संतोष कुमार पटेल, नम्मा कर्नाटका सेने नगर अध्यक्ष श्रीमती अंबिका गौतम, वगरराज मेहंदी शिक्षक सुदर्शन पांचाल, राजकुमार करुणा सागर, सह शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिकी विद्यालय खानापुरता औरदाबा, कुमार सुदेश मोरे कराटे शिक्षक और शरणप्पा में चित्रकला शिक्षक और 61 बच्चे, सूर्यकांत मोरे कार्यक्रम समन्वयक, जिला बाल भवन समिति बीदर, नागाली सिदारा अभिभावक और अन्य लोग उपस्थित रहे। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮೋರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಭವನ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕರಕುಶಲೆ, ಜಡಿಮೆಣ್ಣಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ, ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬೋಧಕರಿಂದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 15 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ. ಬಾಲ್ ಭವನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ, ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇ 25ರವರೆಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಟೀಚರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ ಭವನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮೋರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು
ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. भारत एक गंभीर देश है, पाकिस्तान जैसा नहीं, हमें दुनिया के साथ चलना होगा, सांसद शोभा करंदलाजे ने कहा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर हम सभी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़े हैं नारे के तहत आयोजित भाजपा की तिरंगा यात्रा में भाग लेने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा, जब विश्व के नेता अनुरोध करते हैं तो हमें उसका पालन करना होता है। हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, हमने दुनिया की बात सुनी है लेकिन पाकिस्तान ने नहीं सुनी है। भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि दुनिया के पाकिस्तान की चाल देखी है, अब दुनिया को खुद सोचना चाहिए कि हमने निर्देशों का पालन किया है, पाकिस्तान ने नहीं। हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, हमारे जवानों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम सीमा पर अपना बदला दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया है। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमने दिखाया है कि भारत आतंक के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में आतंक को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। इसके अलावा पाक सेना ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर को निशाना बनाया। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के मामले में दृढ़ रहा है और उसने इस पर कोई समझौता नहीं किया। कल ही हमने स्पष्ट किया था कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। हमने केवल आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को निशाना बनाया है और यही भारत का एकमात्र एजेंडा रहा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया और संघर्ष विराम का यह उल्लंघन अपने केवल दिखाता है कि आने वाले दिनों में इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। India has been consistently firm and maintained an uncompromising stand when it comes to terrorism in all its forms and manifestation. Yesterday itself, we specified that any future act of terror will be viewed as an act of war against India. Now look at the irony of the situation. You have the DGMO of Pakistan calling the DGMO of India at 3:30 yesterday afternoon, specifying that they will stop all kinds of military action on land, sea from 5 p.m. And there you have them breaking the trust again. We have seen this repeatedly because with India and Pakistan, we have wanted to only target terrorists and terror outfits, and that has been the only agenda of India. On the other hand, Pakistan has targeted civilians, and this breach of ceasefire only shows you that what they will have to bear as the brunt in the days to come. वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने की आलोचना करते हुए इसे हमारी संप्रभुता पर हमला बताया। पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शत्रुता समाप्त करने के समय और उद्देश्य पर सवाल उठाया। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है। ये सरकार की कमजोरी है मोदी की। प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसमें लाना पड़ा, उसको वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया। ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। गुजरात बचाने के लिए, गुजरात में कुछ उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये गद्दारी हुई। हिंदी में जानना चाहेंगे, ट्रम्प ने लोजिस्टिक करने के बाद वॉर ब्रेक कैसा बचा जाए? ट्रम्प ने वहाँ पे गाजा बजा के जब इलेक्शन में थे उन्होंने कहा था कि मैं सारी वर्ल्ड में जो वॉर चले वो रुकाऊंगा, उसका उन्होंने माइलेज भी दिया। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा बीते दिन भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद आज पीएम मोदी अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अमित चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। यह बैठक दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में पीएम के आवास पर की गई। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर हो रही है। यह ऑपरेशन बीते 7 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के 26 पर्यटकों पर किए गए हमलों के बदले में चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया। इस एयर स्ट्राइक में 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी की ओर से सीज फायर की स्थिति को लेकर जानकारी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की एक झलक देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। पीएम मोदी ने घोषणा की कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्यवाही युद्ध की कार्यवाही मानी जाएगी। आतंकवाद की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक इसे पूरी तरह से कुचल नहीं देते। आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सभी को पीएम मोदी के नेतृत्व में एक स्वर में लड़ना होगा। आतंकवाद कभी भी प्यार की भाषा नहीं अपना सकता, उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की कथित भूमिका की कड़ी निंदा की तथा वैश्विक ध्यान एवं निर्णायक कार्यवाही का आह्वान किया। More than 230 million Muslims living in India, and our forefathers rejected the two-nation theory. Can Pakistan tell the world why are they shooting at the Iranian checkpost? Pakistani deep state, the Pakistani ISI, the Pakistani military, their aim and objective is to always create problems in India, to destabilize India in any way, whatever. And they have been sponsoring, they have been promoting, they have been training terrorists inside their own country. Well, Pakistan conveniently forgets that there are more than 230 million Muslims living in India, and our forefathers rejected the two-nation theory. We despise, we rejected the two-nation theory proposed by Mr. Jinnah. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश के हर कोने में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन भी किसी आतंकी घटना को रोकने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और भारतीय सेना अलर्ट है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए दक्षिण कश्मीर के जिलों में छापेमारी कर रही है। सुबह से ही एसआईए कई जिलों में छापे मार रही है। यह छापेमारी जम्मू और कश्मीर पुलिस की मदद से की जा रही है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बन गई है, जिससे कई लोग खुश हैं। इसी बीच पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा फैसला लिया है। ये कश्मीर के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, जो कई दिन से गोलीबारी के शिकार हो रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहां भी और वहां भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे भरे हैं, पार भी भरे हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के जरिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये खुद ही एक बड़ा भाई बन के इस रीजन का, मैं नहीं कहती खाली पाकिस्तान का बड़ा भाई, मैं कहती हूँ पूरे रीजन में जो इसमें हमारे जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका बड़ा भाई बनना चाहिए हमारे मुल्क को। न सिर्फ अपने मसले मसाइल बल्कि पूरे इस रीजन के खित्ते के मसले हल करने चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसमें वो पावर है, इस मुल्क में वो एक सॉफ्ट पावर है, ये वो कर सकता है। तो अब जो भी कुछ भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने लेटर लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की। इस पत्र में दोनों नेताओं ने कहा, यह मुद्दे न केवल देश की सुरक्षा और विदेशी नीति से जुड़े हैं, बल्कि इन पर संसद में चर्चा होना बहुत जरूरी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने लेटर लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की। इस पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि यह मुद्दे न केवल देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े हैं, बल्कि इन पर संसद में चर्चा होना बहुत जरूरी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पाकिस्तान की आलोचना की। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह और एनएसए, सीडीएस और सेना प्रमुख भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन, दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।